Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Today, I will discuss National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) Marathon MCQ 100 MCQs. I will discuss. So definitely, this session would be interesting one. You listen the video and you can get collect. Uh, you can collect complete information about NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights. It is very useful for different exams like Central Teachers Eligibility Test, UGC NET, Principal Vice Principal exam in NVS, KVS, EMRS, other state boards, and in UPSC Delhi Board Principal exam. Also for different states also regularly teachers eligibility test also conducting, and for teachers post also uh, candidates facing exam. So definitely this session actually would be interesting one. You can get information and it would be very useful for you. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Do not forget to subscribe my channel. You see, follow my Facebook page. It is Asit Governmental Guru. Same. If you follow my page, then systematically you can get video links. My WhatsApp number is there. It is 8327782034. If any query is there, you can contact with me and clear your doubt. Now I am going to discuss 100 marathon MCQs related to the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). Question number 1: when was the NCPCR established? Option B is the correct answer. 2007. National Commission for Protection of Child Rights established 2007. Question number 2: under which act was the NCPCR constituted? Juvenile Justice Act 2000, Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act, Commission for Protection of Child Rights Act 2005, Right to Education Act 2009. It is Commission for Protection of Child Rights Act, CPCR Act 2005. Okay, option C is the correct answer. Question number 3: what is the primary function of NCPCR? NCPCR का primary function क्या है? To prosecute child offenders, to ensure child rights as per the Constitution and UNCRC, to provide financial aid to children, to regulate child labor laws only. Option B is the correct answer. Main function is to ensure child rights as per the Constitution and UNCRC. It is United Nations Convention on the Rights of the Child. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूएनसीआरसी. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनसीपीसीआर? इसमें कौन सा एक पॉइंट है जो एनसीपीसीआर का की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मॉनिटरिंग आरटी इंप्लीमेंटेशन, राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंटेशन, investigating child rights violations, providing direct monetary assistance to families, recommending policy changes to the government. ऑप्शन सी ये की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अदरवाइज जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका कैसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा वो एनसीपीसीआर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है. चाइल्ड राइट वायोलेशंस का इन्वेस्टिगेशन भी एनसीपीसीआर का पार्ट में आता है और एनसीपीसीआर टाइम टू टाइम रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंजेस के लिए. तो मोर एंड मोर सेफ्टी एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर द चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स. ओके, तो यहां पर जो की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 5: एनसीपीसीआर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसी. एनसीपीसीआर इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6: हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द एनसीपीसीआर? तो एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, तो उनको कौन अपॉइंट करेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होता है. 6 मेंबर में एटलीस्ट 2 मेंबर्स फीमेल रहेंगे
और वन मेंबर रहेगा SC ST से, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आगे में डिस्कस करेंगे। तो चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द एनसीपीसी आर अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द एनसीपीसीआर प्राइमरीली फोकसेस ऑन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, ओके, जो चाइल्ड राइट्स होता है वो चाइल्ड को हम कैसे काउंट करेंगे, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो एनसीपीसीआर 0 to 18 ईयर्स, ओके, जो चिल्ड्रन का राइट है वो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, 0 to 18 ईयर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, which international convention guides the NCPCR's work? UNCRC, United Nations Convention on the Rights of the Child, Universal Declaration of Human Rights, Convention on Elimination of Discrimination Against Women, International Labour Organization conventions. Option A is the correct answer, United Nations Convention on the Rights of the Child. ठीक है, तो जो NCPCRs का वर्क है वो बेसिकली UNCRC गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एनसीपीसीआर कैन टेक so much to cognizance of only cases referred by the government, only cases reported by NGOs, any child rights violation, only cases involving child labor. ऑप्शन सी, एनी चाइल्ड राइट्स वायोलेशन। जब कोई चाइल्ड राइट्स वायोलेशन होता है तब एनसीपीसीआर उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज मॉनिटर्ड बाय द एनसीपीसीआर? कौन सा स्कीम को, जो बिलो 4 स्कीम्स है, कौन सा स्कीम को एनसीपीसीआर मॉनिटर करता है? मिड डे मील स्कीम, पीएम किसान, आयुष्मान भारत और मनरेगा। तो मिड डे मील स्कीम, क्योंकि मिड डे मील स्कीम वो राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आ जाए 2009 में। ओके, तो उसमें एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बोल दिया गया, तो एवरी चिल्ड्रन को एजुकेशन मिलना चाहिए। और उससे मिड डे मील स्कीम प्रॉपरली मॉनिटर हो रहा है कि नहीं स्कूल में, तो इसको एनसीपीसीआर मॉनिटर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द एनसीपीसीआर सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट to the President of India, the Prime Minister, the Ministry of Women and Child Development, the Chief Justice of India। जो एनसीपीसीआर जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब यू क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, MCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसको सबमिट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is a key function of the NCPCR? जो बिलो 4 पॉइंट्स है उसमें कौन सा की फंक्शन है एनसीपीसीआर का? रनिंग ऑर्फनेजेस, रिव्यूइंग लॉज अफेक्टिंग चिल्ड्रन एंड रिकमेंडिंग चेंजेस, डायरेक्टली प्रोसिक्यूटिंग चाइल्ड ट्रैफिकर्स, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स टू द चिल्ड्रन। ऑप्शन बी, रिव्यूइंग लॉज अफेक्टिंग चिल्ड्रन एंड रिकमेंडिंग चेंजेस। वो जो भी लॉज है, जिस वो लॉ को रिव्यू करता है, ठीक है, और रिकमेंड करता है कि चेंजेस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को रिकमेंड करता है उसका चेंजेस के लिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एनसीपीसीआर हैज द पावर्स ऑफ ए, किस तरीके का एनसीपीसीआर का पावर है? सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, फैमिली कोर्ट। सिविल कोर्ट का जो पावर है एनसीपीसीआर का, उस तरीके का पावर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एनसीपीसीआर इज लोकेटेड इन मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। जो हेडक्वार्टर्स ऑफ द एनसीपीसीआर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एनसीपीसीआर इज मैंडेटेड टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, 4 एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929, इंडियन पेनल कोड, ऑल ऑफ द अबव। तो एनसीपीसीआर किसको मॉनिटर करता है कि ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं? ऑप्शन ए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन आर देयर इन एनसीपीसीआर? मैं अभी बताया था चेयरपर्सन को छोड़ देने के बाद 6 मेंबर्स है, ठीक है। 6 मेंबर्स में अभी मैं बताया था एटलीस्ट 2 मेंबर्स फीमेल रहेंगे, SC ST से एटलीस्ट 1 मेंबर रहेगा, और सब लीगल बैकग्राउंड है कि चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है, वो सब अदर मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, द एनसीपीसीआर कैन रिकमेंड लीगल एक्शन बट कैन नॉट issue summons, pass binding judgments like a court, conduct investigations, file cases in court. एनसीपीसीआर रिकमेंड करेगा लीगल एक्शन के लिए बट कैन नॉट पास बाइंडिंग जजमेंट्स लाइक ए कोर्ट। कोर्ट जैसे जजमेंट देता है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उस तरीके का नहीं, बट कैन नॉट पास बाइंडिंग जजमेंट्स लाइक ए कोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लीगल एक्शन के लिए रिकमेंड करेगा, ठीक है, मगर जैसे कोर्ट एक बाइंडिंग जजमेंट देता है, पास करता है, उसको फॉलो स्ट्रिक्टली करना है, उसको आप इट मीन्स नॉन कंप्लाई नहीं कर सकते, वैसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द एनसीपीसीआर's jurisdiction? इसमें एनसीपीसीआर's का jurisdiction में नहीं है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जुवेनाइल जस्टिस इश्यूज, कस्टडी डिस्प्यूट्स इन फैमिली कोर्ट्स, वायोलेशंस अंडर पोक्सो एक्ट। अब देखिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग जुरिस्डिक्शन में है, जुवेनाइल जस्टिस इश्यूज जुरिस्डिक्शन में है, कस्टडी डिस्प्यूट्स इन फैमिली कोर्ट्स ये नहीं है, वायोलेशंस अंडर पोक्सो एक्ट है। तो जो क्रॉस लगाया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कस्टडी डिस्प्यूट्स इन फैमिली कोर्ट्स ये एनसीपीसीआर का जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द एनसीपीसीआर वर्क्स क्लोजली विथ, किसके साथ क्लोजली वर्क करता है? स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बोथ ए एंड बी, ओनली इंटरनेशनल एजेंसीज। इसमें देखिए द एनसीपीसीआर वर्क्स क्लोजली विथ बोथ होगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द एनसीपीसीआर is directly involved in monitoring the implementation of POCSO Act 2012, Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, Right to Education Act 2009, all of the above. So NCPCR directly involved in monitoring all, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पोक्सो एक्ट को मॉनिटर करता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को मॉनिटर करता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट को मॉनिटर करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 21, the NCPCR can recommend compensation for victims of child rights violations. Okay, can recommend compensation for victims, जो child right violations में victim है उसको recommend करता है compensation देने के लिए। तो उसमें section 33 of the POCSO Act, the section 21 of the Juvenile Justice Act, section 14 of the RT Act, both A and B. ऑप्शन डी आप देख लीजिए, सेक्शन 33 ऑफ द पोक्सो एक्ट, वहां पर सेक्शन, ये सेक्शन को याद रखिए पोक्सो एक्ट का, उसमें क्लियरली मेंशन है जो चाइल्ड राइट अब्यूज का विक्टिम है उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, जिसके ऊपर चार्ज लगा है वो कॉम्पेंसेशन देगा। और सिमिलरली आप देखिए सेक्शन 21, इसको भी याद रखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आप देखिए उसमें भी क्लियर मेंशन है सेक्शन 21 में, जिस चाइल्ड को, जो विक्टिम को अब्यूज किया गया है, जो विक्टिम है उसको बेसिकली जिसके ऊपर चार्ज लगा है जो पर्सन के ऊपर, वो कॉम्पेंसेशन देगा। तो दोनों सेक्शन को याद रखिए, पोक्सो एक्ट सेक्शन 33 एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 21, दोनों में क्लियरली मेंशन है कि विक्टिम को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन कौन देगा? ना जिसके ऊपर चार्ज लगा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 को चलेंगे। Which of the following is a recent initiative of the NCPCR? अभी एनसीपीसीआर का रिसेंट इनिशिएटिव है, क्या है? ऑप्शन ए बाल स्वराज पोर्टल फॉर ट्रैफिकिंग वल्नरेबल चिल्ड्रन, पोषण अभियान फॉर चाइल्ड न्यूट्रिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, उज्ज्वला योजना फॉर चाइल्ड लेबरर्स। तो इसमें देखिए बाल स्वराज पोर्टल एक क्रिएट किया है एनसीपीसीआर ने फॉर ट्रैकिंग वल्नरेबल चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन एक्चुअली मिसिंग है, जो वल्नरेबल चिल्ड्रन मिसिंग है उनको ट्रैकिंग करने के लिए एक बाल स्वराज पोर्टल है क्रिएट किया है, ठीक है।
तो मिसिंग चिल्ड्रन और मिसिंग चिल्ड्रन को ट्रैक करने के लिए, मिसिंग वल्नरेबल चिल्ड्रन को ट्रैक करने के लिए बाल स्वराज पोर्टल क्रिएट किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द एनसीपीसीआर हैज द अथॉरिटी टू अरेस्ट ऑफेंडर्स वायोलेटिंग चाइल्ड राइट्स, समन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर इंक्वायरीज, ओवररूल कोर्ट जजमेंट्स, डायरेक्टली अलोकेट फंड्स टू एनजीओज। ऑप्शन बी, इसमें एनसीपीसीआर के पास अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समन कर सकता है इंक्वायरीज के लिए, ठीक है। कोई डायरेक्टली वो अरेस्ट नहीं करेगा ऑफेंडर्स को, कि कोर्ट जजमेंट को ओवररूल नहीं करेगा, कि अलोकेट फंड नहीं करेगा एनजीओज को। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वो समन करेगा इंक्वायरीज के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर व्हिच प्रोविजन कैन द एनसीपीसीआर टेक अप केसेस ऑफ चाइल्ड लेबर। कौन सा प्रोविजन में जो एनसीपीसीआर जो चाइल्ड लेबर रिलेटेड मैटर में एनसीपीसीआर वो केस को टेकअप करता है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये सभी जो है क्लियरली मेंशन है। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952। इसके हिसाब से यदि चाइल्ड लेबर को इन्वॉल्व किया गया है, उसके ऊपर एनसीपीसीआर केस को टेकअप करेगा और जस्टिस प्रोवाइड करेगा चाइल्ड को। और जो भी बेसिकली चाइल्ड को इन्वॉल्व किया है, ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल है, उसके ऊपर एक्शन लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द एनसीपीसीआर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज प्राइमरली फॉर, जो एसओपी है एनसीपीसीआर का, किसके लिए है? हैंडलिंग केसेस ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, रेगुलेटिंग प्राइवेट स्कूल्स अंडर आरटी, मॉनिटरिंग चाइल्ड अडॉप्शन प्रोसेसेस, इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो उसमें जो एसओपी जो जारी करता है एनसीपीसीआर, हैंडलिंग केसेस ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, जो मिसिंग चाइल्ड है उसको हैंडल करने के लिए एसओपी जारी करता है एनसीपीसीआर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द एनसीपीसीआर इज। एनसीपीसीआर का चेयरमैन है, जो मेंबर्स है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 3 years, 5 years, 6 years अंटिल रिटायरमेंट एज। एक्चुअली 3 years है, 3 years। और यहां पर जो ये क्वेश्चन में 3 years है, आगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। चेयरपर्सन, मेंबर्स, उनका क्वालिफिकेशन डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, मगर जो टर्म ऑफ ऑफिस है चेयरमैन है कि मेंबर्स है, 3 years है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द एनसीपीसीआर कैन फाइल ए रीट पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 of the constitution, article 226 of the constitution, either A or B, only through the attorney general। रीट पिटिशन के क्या है, कब रीट पिटिशन फाइल करेगा? रीट पिटिशन क्या है? जब फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है, जब जो लीगल राइट है वो वायोलेट होता है, चाइल्ड का फंडामेंटल राइट है कि चाइल्ड का लीगल राइट वायोलेट होता है, तो उसका रिमेडी के लिए, लीगल रिमेडी के लिए वहां पर एक मीन्स रीट पिटिशन डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ओके। तो यही है रीट पिटिशन का मतलब, यही है जब फंडामेंटल राइट और लीगल राइट वायोलेट होगा, तब इस केस में कंप्लेन किया जाएगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ये रीट पिटिशन है। आप देखिए आर्टिकल 32 में रीट पिटिशन डायरेक्टली डाला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आप जानते हो, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 226 है, यहां पर रीट पिटिशन डाला जाएगा हाई कोर्ट में, ठीक है। तो क्लियर? तो इसमें आंसर सी होगा, आइदर ए और बी, ओके। आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें रीट पिटिशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाएगा रीट पिटिशन। तो रीट पिटिशन का मतलब मैं बताया कि यदि फंडामेंटल राइट की, लीगल राइट्स ऑफ द चाइल्ड वायोलेट होता है, तब वहां पर कंप्लेन किया जाएगा, ओके। एक रिकॉर्डेड कंप्लेन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर को याद रखिए। आर्टिकल 26 यदि आप रीट पिटिशन डालोगे हाई कोर्ट में, तब आर्टिकल 226 आधार पर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द एनसीपीसीआर पेंसिल पोर्टल। एनसीपीसीआर का एक पोर्टल है पेंसिल पोर्टल, तो उसमें क्या आता है? ट्रैफिकिंग चाइल्ड लेबर कंप्लेंट्स, मॉनिटरिंग आरटी एडमिशंस, रिपोर्टिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज,
और रजिस्टरिंग और फंड चिल्ड्रन। ये जो पेंसिल पोर्टल है, ट्रैकिंग चाइल्ड लेबर कंप्लेंट्स, जो भी चाइल्ड लेबर कंप्लेंट्स है उसको ये पोर्टल जो है एनसीपीसीआर का जो पेंसिल पोर्टल है उसमें ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग फॉल्स ऑन द एनसीपीसीआर पेंसिल पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिंग चाइल्ड लेबर कंप्लेंट्स, जो भी चाइल्ड लेबर कंप्लेंट है उसको हम ट्रैक करेंगे इसी पोर्टल में एनसीपीसीआर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द एनसीपीसीआर कोलैबोरेट्स विथ व्हिच मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड रिलेटेड पॉलिसीज। एनसीपीसीआर किसके साथ कोलैबोरेट किया है, किस मिनिस्ट्री के साथ फॉर चाइल्ड रिलेटेड पॉलिसीज? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सबके साथ कोलैबोरेट किया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चाइल्ड रिलेटेड इस पॉलिसीज में एनसीपीसीआर सबके साथ कोलैबोरेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऐसे तो उसका मेन डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द एनसीपीसीआर घुंचो आप, ये एक आप है एनसीपीसीआर का, घुंचो आप इज रिलेटेड टू व्हाट? ये आप क्या रिलेट करता है? एनसीपीसीआर का ये जो आप है क्या रिलेट करता है? रिपोर्टिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मॉनिटरिंग चाइल्ड हेल्थ इन ट्राइबल एरियाज, ट्रैकिंग चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, नॉन ऑफ द अबव। ये जो आप है एनसीपीसीआर का, इसमें मॉनिटरिंग चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड का हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है ट्राइबल एरियाज में, मॉनिटरिंग चाइल्ड हेल्थ इन ट्राइबल एरियाज, इसलिए एनसीपीसीआर ने ये आपको क्रिएट किया है। ठीक है, घुंचो आपको। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 31, द एनसीपीसीआर रिकमेंडेशंस आर, एनसीपीसीआर का रिकमेंडेशन कैसे होता है? बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, क्या एनसीपीसीआर का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग है? एडवाइजरी इन नेचर, इक्विवेलेंट टू कोर्ट ऑर्डर्स, ना ओनली फॉर इंटरनेशनल एजेंसीज? तो एनसीपीसीआर का जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी है, एडवाइजरी इन नेचर। कभी वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंड नहीं कि गवर्नमेंट उसको माने इट मींस इट इज बाइंड फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीपीसीआर की इक्विवेलेंट लाइक कोर्ट ऑर्डर्स नहीं है, ओनली फॉर इंटरनल एजेंसीज नहीं है, वो एडवाइजरी इन नेचर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द एनसीपीसीआर वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 2020 अंडर व्हिच चेयरपर्सन? प्रियंका कानूनगो, स्तुति काकर, शांता सिन्हा, योगेश दुबे। तो अभी भी है, ये बहुत पॉपुलर चेयरपर्सन है प्रियंका कानूनगो, क्योंकि उनका चेयरमैनशिप में बहुत कुछ चेंजेस आया है एनसीपीसीआर में, बहुत कुछ पोर्टल्स ओपन हुआ है, जो मिसिंग चाइल्ड है, कि ट्रैफिकिंग चाइल्ड है, कि चाइल्ड अब्यूज है, कि सपोज हम रेलवे पीपल दे ट्रैक द चाइल्ड। ओके, ये सब बहुत पोर्टल्स ओपन हुआ है इनका अंडर। प्रियंका कानूनगो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द एनसीपीसीआर ई बॉक्स इज ए प्लेटफॉर्म फॉर, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है, ऑनलाइन कंप्लेंट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड अडॉप्शन रजिस्ट्रेशंस, स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस, आरटी एडमिशंस। तो ये जो ई बॉक्स है एनसीपीसीआर उसका जो क्रिएट किया है, जो बेसिकली ई बॉक्स क्रिएट किया है वो ऑनलाइन कंप्लेंट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज। ठीक है, एक ऑनलाइन में कंप्लेंट किया जाएगा यदि चाइल्ड को अब्यूज किया जाता है, तो ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द एनसीपीसीआर रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में एनसीपीसीआर का क्या रोल है? एंश्योरिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन इन रिलीफ कैंप्स, प्रोवाइडिंग ट्रॉमा काउंसलिंग, बोथ ए एंड बी, ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग रिलीफ मटेरियल्स? बोथ ए एंड बी। डिजास्टर मैनेजमेंट केस में एनसीपीसीआर का मेन रोल है कैसे चाइल्ड को प्रोटेक्शन दिया जाएगा रिलीफ कैंप में, और सेकंड है जो कैसे काउंसलिंग उनको किया जाएगा, क्योंकि वो वहां पर द चिल्ड्रन एक्चुअली दे स्पेंड टाइम विथ ट्रॉमा, तो उनको काउंसलिंग किया जाता है, प्रोवाइडिंग ट्रॉमा काउंसलिंग। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है डिजास्टर टाइम में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, द एनसीपीसीआर स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस, एनसीपीसीआर का जो स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस कवर क्या क्या कवर करता है? फिजिकल सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, बोथ ए एंड बी, ओनली फायर सेफ्टी ड्रिल्स? तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी सेफ एंड सिक्योर वन फॉर द चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स, और के कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है। आप देखा होगा आरटी एक्ट 2009, ओके, इसको तो मॉनिटरिंग कर रहा है एक्ट को, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009,
ये प्रॉपरली मॉनिटर हो रहा है कि नहीं कौन देख रहा है? एनसीपीसीआर देख रहा है। इसमें देखिए इसका एक सेक्शन 17 में क्लियरली मेंशन है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है। सेक्शन 17 आप देखिए तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है एनसीपीसीआर। तो स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुइटेबल होगा चिल्ड्रन के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली प्रोटेक्ट देगा चाइल्ड को, उसको चेक करता है, और एक प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द एनसीपीसीआर 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन, ये जो कैंपेन एनसीपीसीआर का है इसका एम क्या है? एराडिकेट चाइल्ड लेबर इन 100 डिस्ट्रिक्ट, मोबिलाइज यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी, प्रोवाइड 100 मिलियन स्कॉलरशिप्स, बिल्ड 100 मिलियन स्कूल्स। इसमें मेन है ये जो कैंपेन है 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन, मोबिलाइज यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी। कैसे मोर एंड मोर यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा, ओके, और उनका मेन एम रहेगा कैसे हम चाइल्ड को प्रोटेक्शन देंगे। तो मोबिलाइज मोर एंड मोर यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी, the youth people they advocate, their main aim and their main ambition is to give proper 100% to create safe and secure environment for the children. तो mobilize youth for child rights advocacy बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, the NCPCR's C box portal is specially designed. C box means sexual harassment electronic box, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ये बेसिकली जो फीमेल चाइल्ड उसके लिए है। रिपोर्टिंग सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल्स, ये है सी बॉक्स, रिपोर्टिंग सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर व्हिच प्रोविजन कैन एनसीपीसीआर डायरेक्टली इंटरवेन इन केसेस ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट? मैं बताया था कि सेक्शन 17 ऑफ आरटी एक्ट, क्योंकि आरटी एक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उसको कौन मॉनिटर कर रहा है? एनसीपीसीआर कर रहा है। और आरटी एक्ट का सेक्शन 17 क्लियरली डिफाइन किया है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द एनसीपीसीआर हवाबाज इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव है ये एनसीपीसीआर का हवाबाज, ये क्या फोकस करता है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, मॉनिटरिंग चिल्ड्रन इन रेलवे स्टेशन, कंबाटिंग ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज। ये जो हवाबाज इनिशिएटिव है ये मॉनिटर करता है चिल्ड्रन को रेलवे स्टेशन में। तो इसलिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, एनसीपीसीआर ने लिया है, इसमें चाइल्ड को ईच एंड एवरी चाइल्ड को मॉनिटर किया जाएगा रेलवे स्टेशन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्रेंथेंड एनसीपीसीआर's मैंडेट फॉर आरटी इंप्लीमेंटेशन? जो राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंटेशन आया था तो उसमें एनसीपीसीआर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आरटी एक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन मीन्स एक अभी जो आर्टिकल 21A है इसमें क्लियरली मेंशन है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। तो मेन उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का बात आ जाता है कि नहीं। तो ये जो आरटी इंप्लीमेंटेशन में एनसीपीसीआर का जो गोल्स, जो एम्बिशंस को स्ट्रेंथन कर दिया गया, तो 86th अमेंडमेंट, अब देखिए 2002 में ये अमेंडमेंट आया था, 86th अमेंडमेंट में, ठीक है। इसमें इसी अमेंडमेंट में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि एक इंसर्ट कर दिया गया आर्टिकल 21A, और एक जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में चाइल्ड को एजुकेशन मिलेगा, चाइल्ड लर्न करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 41, द एनसीपीसीआर संवेदना प्रोग्राम एक एनसीपीसीआर ने इनिशिएटिव लिया था। टेली काउंसलिंग फॉर कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन, फाइनेंशियल एड टू ऑर्फनेजेस, लीगल एड टू चाइल्ड लेबरर्स, स्कॉलरशिप फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसमें कोविड टेली काउंसलिंग फॉर कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन, जो कोविड में जो चाइल्ड अफेक्टेड हुए थे उनको टेली काउंसलिंग, ओके, जो इट मीन्स उनको थ्रू टेलीफोन उनको काउंसलिंग किया जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम लाया था संवेदना प्रोग्राम एनसीपीसीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, एनसीपीसीआर कैन कंडक्ट सोशल ऑडिट्स फॉर व्हिच स्कीम्स? कौन सा स्कीम को एनसीपीसीआर उसका सोशल ऑडिट कर सकता है? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, मिशन वात्सल्य, बोथ ए एंड बी, ओनली आंगनबाड़ी सर्विसेज? बोथ ए एंड बी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन उसको सोशल ऑडिट कर सकता है, और मिशन वात्सल्य
ओके, दोनों का सोशल ऑडिट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द मॉडल गाइडलाइंस फॉर फोस्टर केयर वी आर इशूड बाय एनसीपीसीआर। फोस्टर केयर मीन्स जो ऑर्फन चिल्ड्रन है, जो ऑर्फन चिल्ड्रन ऑलरेडी दे लॉस्ट देयर फादर एंड मदर, तो उनको कैसे प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको कैसे प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा, और उनका कैसे वेलफेयर होगा, तो उसके लिए गाइडलाइंस एनसीपीसीआर ने इशू किया था। ओके, फॉस्टर केयर ऑफ द ऑर्फन चिल्ड्रन। ओके, और जिन चिल्ड्रन का कोई गार्डियन नहीं है, तो इस केस में 2016 में एक गाइडलाइंस लाया था एनसीपीसीआर ने कि इस तरीके का बच्चों को जो वल्नरेबल चाइल्ड है, ऑलरेडी दे आर हैविंग नो गार्डियन, दे आर हैविंग नो फादर एंड मदर, हाउ कैन गिव प्रोटेक्शन टू देम, हाउ कैन क्रिएट सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट टू देम, हाउ कैन दे गेट एजुकेशन, हाउ कैन दे रिजाइड इन अ सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है, गाइडलाइंस लाया था 2016, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, द कमीशन कैन रिकमेंड कैंसलेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्कूल्स अंडर। कमीशन ये भी रिकमेंड कर सकता है कि स्कूल्स का जो रिकॉग्नाइजेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि चिल्ड्रन के लिए वो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, और उसका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेंजर कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में कमीशन रिकमेंड कर सकता है उसका जो स्कूल का जो रिकॉग्नाइजेशन है उसको कैंसिल करने के लिए। आप आरटी एक्ट देख लीजिए, सेक्शन 18, आरटी एक्ट का सेक्शन 18 देखिए। यदि बच्चों के लिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तब कमीशन एनसीपीसीआर रिकमेंड कर सकता है उसका जो रिकॉग्नाइजेशन को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, एनसीपीसीआर भरोसा सेल, एनसीपीसीआर का एक भरोसा सेल है, वो क्या डील करता है? अडॉप्शन ग्रीवेंसेस, केसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अब्यूज, बोथ ए एंड बी, ओनली पोक्सो अपील्स। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। एक है भरोसा सेल जो है अडॉप्शन ग्रीवेंसेस, जो भी ग्रीवेंसेस आता है उसको वो ठीक से उसको कंसिडर किया जाता है और उसको जस्टिस देने के लिए ट्राई किया जाता है। और एक इंस्टीट्यूशनल अब्यूज, यदि कोई इंस्टीट्यूशन में सपोज चाइल्ड को अब्यूज किया जाता है, तो ये सेल डील करता है कि जस्टिस मिलेगा चाइल्ड को। ठीक है, तो बोथ होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 46, एक एनसीपीसीआर का ऑपरेशन मुस्कान इज कोऑर्डिनेटेड विथ स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। ये जो ऑपरेशन मुस्कान एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये ऑपरेशन मुस्कान है, वो इसमें कोलाबोरेट एनसीपीसीआर को किया था, स्टेट गवर्नमेंट्स को किया था। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑपरेशन मुस्कान इज कोऑर्डिनेट ऑल होगा। ये जो ऑपरेशन मुस्कान है, जो मिसिंग चिल्ड्रन है, मिसिंग चिल्ड्रन को कैसे ट्रैकिंग किया जाए, जैसे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उनको कैसे इट मींस रेस्क्यू किया जाए। जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, कि जो चाइल्ड अब्सकॉन्डेड है, ठीक है, जो सपोज जो चाइल्ड मिसिंग चाइल्ड है उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, तो ये ऑपरेशन मुस्कान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लाया था, मगर वो एनसीपीसीआर, स्टेट गवर्नमेंट्स, पुलिस पर्सोनेल्स का हेल्प लिया था। तो इसमें जो ऑपरेशन मुस्कान जो एनसीपीसीआर का कोऑर्डिनेटेड विद ऑल स्टेट पुलिस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डी ऑल ऑफ द अबव आंसर है। अभी देखेंगे ऑपरेशन मुस्कान के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन मुस्कान इज ए नेशन वाइड चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव। ये देखिए फर्स्ट वन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके साथ कोलैबोरेशन किया था? एनसीपीसीआर के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, और इसका मेन फोकस है जो चाइल्ड मिसिंग है, जो ट्रैफिकिंग है, ओके, उनको रेस्क्यू किया जाए और उनका फैमिली के साथ उसको रीयूनाइट किया जाए। ठीक है, तो इसमें मेन ये जो मुस्कान ऑपरेशन है ये चाइल्ड रेस्क्यू के लिए है। इसको एक्चुअली दिस जो इनिशिएटिव है एक्चुअली टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बट कोलैबोरेशन विद एनसीपीसीआर, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पुलिस फोर्सेस। और इसका जो मेन फोकस यही है,
मिसिंग चाइल्ड को ट्रैक करना, ट्रैफिकिंग चाइल्ड को ट्रैक करना, रेस्क्यू करना और उनका फैमिली को हैंड ओवर करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द कमीशंस उज्ज्वल इनिशिएटिव फोकसेस। ये जो कमीशंस का एनसीपीसीआर का जो उज्ज्वल इनिशिएटिव क्या फोकस करता है? चाइल्ड मेंटल हेल्थ, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, चाइल्ड विटनेसेस इन कोर्ट्स, रिफ्यूजी चिल्ड्रन। ये जो उज्ज्वल इनिशिएटिव है एनसीपीसीआर का, वो चाइल्ड विटनेसेस इन कोर्ट्स, जो चाइल्ड विटनेस होता है कोर्ट में, उसी को ये फोकस करता है। ये जो कमीशन, ये जो उज्ज्वल इनिशिएटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 48 को चलेंगे। एक बाल मित्र प्रोग्राम आया था, क्या ट्रेन कर रहा है? द बाल मित्र प्रोग्राम ट्रेन्स पुलिस ऑफिसर्स आज चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्टर्स, टीचर्स आज काउंसलर्स, आशा वर्कर्स फॉर चाइल्ड हेल्थ, पंचायत मेंबर्स ऑन चाइल्ड राइट्स। ये जो बाल मित्र प्रोग्राम है उसमें पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिलता है आज चाइल्ड राइट प्रोटेक्टर्स, कैसे चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है इस प्रोग्राम में, बाल मित्र प्रोग्राम में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 49 को चलेंगे। एनसीपीसीआर आरंभ इनिशिएटिव रिलेट टू, एक एनसीपीसीआर का एक और एक इनिशिएटिव है आरंभ, क्या रिलेट करता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, ट्राइबल चिल्ड्रंस एजुकेशन। जो आरंभ इनिशिएटिव है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर, ईसीई को इंपोर्टेंस देता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर को इंपोर्टेंस देता है ये इनिशिएटिव। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, कमीशंस का जो एनसीपीसीआर का एक पंख इनिशिएटिव है, पंख, ये भी और एक इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव है, क्या ये सपोर्ट करता है? चिल्ड्रेन इन जुवेनाइल होम्स, चिल्ड्रेन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, बोथ ए एंड बी, ओनली ट्रांसजेंडर चिल्ड्रेन। इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा, चिल्ड्रेन इन जुवेनाइल होम्स, जो जुवेनाइल होम्स में है, ठीक है, उनको कैसे अच्छा सपोर्ट मिले, और माइग्रेंट लेबरर्स का जो चिल्ड्रन है, जो माइग्रेंट लेबरर्स है वो उनका स्टेट छोड़कर अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, उनका चिल्ड्रन को कैसे सपोर्ट मिले, ये दोनों के लिए एक पंख इनिशिएटिव एनसीपीसीआर ने डेवलप किया था। ठीक है, तो सपोर्ट टू द चिल्ड्रन दोज हु इट मींस स्पेंड टाइम इन जुवेनाइल होम्स एंड बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी 50 क्वेश्चंस हो गया और 50 क्वेश्चंस है। प्लीज माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट you can get notification for my upcoming videos, right? तो क्वेश्चन नंबर 51 को चलेंगे। एनसीपीसीआर प्रहरी प्रोग्राम, एक प्रहरी प्रोग्राम है एनसीपीसीआर का, किसको ट्रेनिंग देता है ये प्रोग्राम? रेलवे स्टाफ टू आइडेंटिफाई ट्रैफिक चिल्ड्रन, स्कूल बस ड्राइवर्स फॉर चाइल्ड सेफ्टी, आंगनबाड़ी वर्कर्स फॉर माल न्यूट्रिशन डिटेक्शन, होटल स्टाफ टू रिपोर्ट चाइल्ड अब्यूज। ये जो प्रहरी प्रोग्राम है ये ट्रेनिंग देता है रेलवे स्टाफ को टू आइडेंटिफाई ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन। ओके, जो ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने के लिए रेलवे स्टाफ को यह प्रोग्राम ट्रेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, कमीशंस स्माइल स्कीम, कमीशंस का एक स्माइल स्कीम है एनसीपीसीआर का, इंक्लूड सपोर्ट फॉर, ये किसको सपोर्ट करता है स्कीम? चाइल्ड बेगर्स, ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन, बोथ ए एंड बी, ओनली स्ट्रीट चिल्ड्रन। इसमें बोथ ए एंड बी, जो चाइल्ड बेगर्स है और जो ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन है, ओके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्माइल स्कीम ऑफ द एनसीपीसीआर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, स्माइल स्कीम फॉर चाइल्ड बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन। ओके, इस स्कीम में ये दोनों प्रकार का चाइल्ड को सपोर्ट मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 53, एनसीपीसीआर प्रतिधि प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम फिर एनसीपीसीआर का है, प्रतिधि प्रोग्राम, ये क्या प्रोवाइड करता है? Alternative care for children in institutions, legal representation for POCSO victims, compensation for child laborers, rehabilitation for child soldiers। ये जो प्रतिधि प्रोग्राम है एनसीपीसीआर का, ये प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेटिव केयर फॉर चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 54 का चलेंगे। द आपकी बेटी इनिशिएटिव फोकसेस ऑन, ये जो आपकी बेटी इनिशिएटिव है ये क्या फोकस करता है? गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इन ट्राइबल एरियाज, प्रिवेंटिंग सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, बोथ ए एंड बी, ओनली डाउरी रिलेटेड इश्यूज। ये ऑप्शन सी
होगा। दोनों, जो आपकी बेटी इनिशिएटिव है कैसे गर्ल चिल्ड्रन प्रमोट होगा ट्राइबल एरियाज में, उसको देखता है। और एक है प्रिवेंटिंग सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, ये दोनों के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, ये जो आपकी बेटी इनिशिएटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, द कमीशंस विजन 2030 डॉक्यूमेंट अलाइंस विथ, जो एनसीपीसीआर का जो विजन 2020 डॉक्यूमेंट है वो क्या अलाइन करता है? यूएन, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बोथ ए एंड बी, ओनली इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। तो इसमें दोनों, बोथ ए एंड बी। जो अभी विजन 2030 जो डॉक्यूमेंट है एनसीपीसीआर का, वो चाहता है कि मेन उसको मेन ऑब्जेक्टिव है कैसे जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो एसडीजी सस्टेनेबल एसडीजी 4 को कैसे अचीव किया जाएगा, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को कैसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एनसीपीसीआर? ये डायरेक्टली मैं बोल देता हूं, सांता सिन्हा। ठीक है, 2007 में एक्चुअली एनसीपीसीआर एस्टेब्लिश हुआ था, तो फर्स्ट चेयरपर्सन थे सांता सिन्हा। ठीक है, अभी कौन है? प्रियंक कानूनगो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 57, which constitutional article relates mostly close to the goals of the NCPCR regarding child rights? कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो एनसीपीसीआर का जो गोल है रिलेटेड टू द चाइल्ड राइट्स उसके साथ इक्विवेलेंट है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 45, आर्टिकल 19। आप देखिए आर्टिकल 45 है। ओके, जो आर्टिकल 45 में मेंशन है वो बेसिकली एनसीपीसीआर का गोल के साथ इक्विवेलेंट है। एनसीपीसीआर का मेन गोल है कैसे चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट टाइप ऑफ रिकमेंडेशंस कैन एनसीपीसीआर मेक टू द गवर्नमेंट? बाइंडिंग, पॉलिसी लेवल ओनली, एडवाइजरी, जुडिशियल ऑर्डर्स? एनसीपीसीआर का जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को है वो एडवाइजरी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 59, which constitutional article ensures free and compulsory education for children? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, आर्टिकल 21A, जो अमेंडमेंट में बोला था 86th अमेंडमेंट जो आया था। ठीक है, इसमें ये आया था 2002 में, और ये जो अमेंडमेंट लाया था आर्टिकल 21A, ये आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था और ये एम्फसाइज किया था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो इसके वजह से जो एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एनसीपीसीआर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग रूल्स? तो इसमें कौन सा ऐसा एक कमीशन है जो एनसीपीसीआर और उसका रोल ओवरलैपिंग होता है टर्म्स कंडीशंस में? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो उसमें जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो बेसिकली टर्म्स है वो एनसीपीसीआर का टर्म के साथ ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलाइंस विद द गोल्स ऑफ एनसीपीसीआर रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें एनसीपीसीआर का कौन सा गोल जो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन के साथ वो मिलता है? आर्टिकल 39E एंड F, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 46। तो इसमें ऑप्शन ए आर्टिकल 39 एम्फसाइज किया है न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 62, द एनसीपीसीआर प्राइमरीली रिसीव्स फंडिंग फ्रॉम? एनसीपीसीआर जो फंड रिसीव करता है वो कहां से करता है? यूनिसेफ, डोनेशंस एंड क्राउड फंडिंग, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक? क्योंकि एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो उसको जो फंड मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, एनसीपीसीआर को फंडिंग मिलता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, इन कोऑर्डिनेशन विथ व्हिच गवर्नमेंट बॉडी डज द एनसीपीसीआर वर्क टू एड्रेस चाइल्ड ट्रैफिकिंग? ये जो चाइल्ड ट्रैफिक को एड्रेस करने के लिए
एनसीपीसीआर कौन सा गवर्नमेंट बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें एक मुस्कान आया था, अब अभी मैं डिस्कस किया था। तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा जो ट्रैफिकिंग चाइल्ड है कि जो मिसिंग चाइल्ड है कि नहीं? तो इसमें एनसीपीसीआर ने बेसिकली कोऑर्डिनेट विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एड्रेस चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 64, the chairperson of the NCPCR must be a person having experience in finance and corporate law, eminent standing in child education or child welfare, judicial background only, political experience नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो एनसीपीसीआर का चेयरमैन है उसके वो क्या है, एक चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर एक एमिनेंट पर्सनालिटी होना चाहिए और रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर उनका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, एनसीपीसीआर एरा जो है एआई बेस्ड रिसोर्स एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसोर्स एप्लीकेशन इज डिजाइन टू, क्यों इसको डिजाइन किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसोर्स एप्लीकेशन को प्रेडिक्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग पैटर्न्स, मॉनिटर न्यूट्रिशन लेवल्स इन आंगनबाड़ीज, ट्रैक मिसिंग चिल्ड्रन यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन, एनालाइज पोक्सो केस पेंडेंसी। तो ये जो एआई बेस्ड रिसोर्स एप्लीकेशन को डिजाइन किया है एनसीपीसीआर ने, वो ट्रैक मिसिंग चिल्ड्रन उसको ट्रैक करेगा यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन। ठीक है, इसलिए ये एआई बेस्ड रिसोर्स एप्लीकेशन का डिजाइन किया है एनसीपीसीआर ने। ठीक है, तो जो मिसिंग चिल्ड्रन है उसका फेशियल अपीयरेंस को रिकॉग्नाइज करके उसको ट्रैक किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 66, एनसीपीसीआर कोलैबोरेशन विथ मेटा इन 2024 एम्स टू। तो एनसीपीसीआर ने मेटा के साथ 2024 में कोलैबोरेट किया है, क्या एम है? डेवलप चाइल्ड सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स, रिमूव सीएसएम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल फ्रॉम इंस्टाग्राम, ट्रेन पुलिस इन डिजिटल फॉरेंसिक्स, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, ये जो मेटा के साथ कोलैबोरेट किया है उसका एक मेन है कैसे जो इंस्टाग्राम में जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को अपलोड किया जाता है उसको रिमूव किया जाएगा, और एक है चाइल्ड सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम डेवलप होगा, और एक पुलिस पर्सनल्स को डिजिटली उनको ट्रेन किया जाएगा फोरेंसिक्स के ऊपर, ट्रेन पुलिस इन डिजिटल फोरेंसिक्स। तो डिजिटल फोरेंसिक्स के ऊपर कैसे पुलिस पर्सनल्स का पूरा नॉलेज रहेगा। तो ये तीनों ऑल ऑफ द अबव है, मगर मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सेकेंड वन। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, अंडर व्हिच सेक्शन कैन एनसीपीसीआर डायरेक्ट स्टेट्स टू कॉन्स्टिट्यूट एससीपीसीआर्स? तो एवरी स्टेट में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन से एवरी स्टेट में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। तो इसे कौन सा सेक्शन है जिसमें एनसीपीसीआर ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आपका गवर्नमेंट में भी एससीपीसीआर होना चाहिए, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होना चाहिए? सेक्शन 17 ऑफ द सीपीसीआर एक्ट, सेक्शन 35 ऑफ जेजे एक्ट, सेक्शन 109 ऑफ द सीआरपीसी, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सेक्शन 17, आप देखिए कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, ये जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है उसका सेक्शन 17 में क्लियरली मेंशन है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होना चाहिए। ओके, ये कमीशन होना चाहिए, तो सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। जेजे एक्ट जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, और सीआरपीसी, ओके, एंड आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 68 को चलिए, एनसीपीसीआर नोटिसेस टू स्टेट्स रिगार्डिंग इलीगल ऑर्फनेजेस डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम। बहुत कुछ इलीगल ऑर्फन होम्स ऑपरेट हो रहा है स्टेट्स में, तो एनसीपीसीआर एक्चुअली नोटिस दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आपका गवर्नमेंट में इलीगल ऑर्फनेज होम ऑपरेट हो रहा है। तो ये अथॉरिटी उसको कहां से मिलता है एनसीपीसीआर को? जेजे एक्ट सेक्शन 41 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पोक्सो रूल 4 सबसेक्शन 3 बोथ ए एंड बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बोथ बी ए एंड बी। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है सेक्शन 41
कि कोई भी स्टेट में इलीगल ऑर्फन होम ऑपरेट नहीं होगा। और पोक्सो रूल भी देखिए, सेक्शन 4 सब रूल 3 में क्लियरली मेंशन है कि इलीगल ऑर्फन नहीं होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में। यदि होता है तो एनसीपीसीआर इसी दोनों के आधार पर नोटिस इशू करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आपका गवर्नमेंट में इलीगल ऑर्फन होम्स ऑपरेट हो रहा है और उसको बंद करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 69, द कमीशन कैन रिकमेंड सीबीआई प्रोब्स इन चाइल्ड राइट्स केसेस। कब कमीशन ने रिकमेंड करेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोब होना चाहिए, सीबीआई प्रोब होना चाहिए? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ सीपीसीआर एक्ट, एनएचआरसी गाइडलाइंस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स। तो इसमें सेक्शन 6 आप देखिए, जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट है, ठीक है, इसका सेक्शन 6 में क्लियरली मेंशन है कि यदि जो चाइल्ड अब्यूज केस है वो सीरियस है, कि चाइल्ड मॉलेस्टेशन केस सीरियस है, इस केस में कमीशन रिकमेंड करेगा सीबीआई प्रोब के लिए। सेक्शन 6, ओके, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट का सेक्शन 6 में क्लियरली मेंशन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, एनसीपीसीआर इंटरवेंशन इन द 2023 फरिश्ता केस इन्वॉल्व्ड। 2023 में एनसीपीसीआर एक इंटरवेन किया था फरिश्ता केस में। क्या वो केस था? कंपेंसेशन फॉर रेप सर्वाइवर्स, फास्ट ट्रैकिंग पोक्सो ट्रायल्स, रिहेबिलिटेटिंग ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन, रेगुलेटिंग चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। तो ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में डिफरेंट वे में चाइल्ड को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जैसे बहुत सारी गेमिंग ऐप आ रहा है, ठीक है, तो गेमिंग ऐप आ रहा है और ऐसा कुछ ऐप आ रहा है जहां पर वर्चुअल ग्रूमिंग क्या है? अडल्ट ने वो क्या करता है, चाइल्ड के साथ कनेक्ट होता है और उसको अब्यूज, उसको मोलेस्ट करता है। जब when the adult actually connect with the child through different apps, online apps, और उसको molest the child, abuse the child, तो इसको रेगुलेट करने के लिए फरिश्ता केस एक्चुअली हैंडल किया था, एनसीपीसीआर इंटरवेन किया था, रेगुलेटिंग चाइल्ड इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 71, 2024 प्रोजेक्ट बुनियाद, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाज लॉन्च्ड आफ्टर एनसीपीसीआर आइडेंटिफाइड। एनसीपीसीआर क्या इसे आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ठीक है। 12,000 फेक ऑर्फनेजेस, 8,000 स्कूल्स विदाउट आरटी कंप्लायंस, 15,000 मिसिंग चिल्ड्रन इन शेल्टर होम्स, 5,000 इलीगल अडॉप्शन सेंटर्स। इसमें जो प्रोजेक्ट बुनियाद आया था, ऑप्शन ए एक्चुअली 12,000 फेक ऑर्फनेजेस, उसमें एनसीपीसीआर ने डिटेक्ट किया कि ओवरऑल कंट्री 12,000 फेक और फन होम्स ऑपरेट हो रहा है, वो इलीगल ऑर्फनेज है। इसी को रेगुलेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलप किया गया, प्रोजेक्ट बुनियाद। इसमें क्या है, जो फेक ऑर्फनेज है उसको डिटेक्ट किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, और जिस स्टेट गवर्नमेंट में है उसको नोटिस किया जाएगा और उसको बंद किया जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बुनियाद बेसिकली फेक ऑर्फनेजेस के साथ रिलेट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, एनसीपीसीआर पर्पल इनिशिएटिव कैटर्स टू। ये जो एनसीपीसीआर का पर्पल इनिशिएटिव है, ये क्या डील करता है? चिल्ड्रन विथ एपिलेप्सी, LGBTQIA प्लस एडोलेसेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर्स, रिफ्यूजी चिल्ड्रन फ्रॉम म्यांमार। जो पर्पल इनिशिएटिव है, जो चिल्ड्रन एक्चुअली सफरिंग इन एपिलेप्सी टाइप ऑफ डिजीज, उसी रिलेटेड केस में एनसीपीसीआर एक्चुअली डील करता है। इस तरीके का केस, चिल्ड्रन विथ एपिलेप्सी, तो उनको कैसे प्रॉपर मेडिकल अटेंशन दिया जाएगा, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा, उस तरीके का जो चिल्ड्रन सफरिंग इन एपिलेप्सी। तो ये इनिशिएटिव इसीलिए बनाया गया, पर्पल इनिशिएटिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, द टेक शील्ड प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेक शील्ड प्रोग्राम प्रोवाइड्स साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग टू स्कूल चिल्ड्रन, VPNs फॉर चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग ऑफ अडॉप्शन प्रोसेसेस, ऑल टूल्स फॉर SPPCRs, ये स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसमें देखिए, ये जो टेक शील्ड प्रोग्राम है, ऑप्शन सी, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग ऑफ अडॉप्शन प्रोसेसेस। इट मींस क्या है, जो टेक शील्ड प्रोग्राम को डेवलप किया गया है, बेसिकली ट्रैकिंग किया जाएगा, ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रैकिंग किया जाएगा। जैसे चाइल्ड अब्यूज है,
कि चाहे जो वर्चुअल ग्रूमिंग है, जो वर्चुअल ग्रूमिंग में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल ग्रूमिंग क्या है? वर्चुअल ग्रूमिंग क्या है ना, डिफरेंट वेज में अडल्ट्स क्या करते हैं ना, चाइल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं ऑनलाइन में, और बाकी उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन ट्रैकिंग। तो ये जो वर्चुअल ग्रूमिंग है, कि चाइल्ड अब्यूज है, ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज है, कि ऑनलाइन चाइल्ड मॉलेस्टेशन है, उसको ट्रैकिंग करने के लिए ये टेक्सिल्ड प्रोग्राम, इसमें ब्लॉकचेन ट्रैकिंग होगा, ठीक है। तो यही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 74, एनसीपीसीआर's मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंटरपोल। ओके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंटरपोल इन 2023 फोकस सेशन। क्यों, क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था इंटरपोल के साथ 2023 में? क्रॉस बॉर्डर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, बोथ ए एंड बी, जुवेनाइल जस्टिस रिफॉर्म्स, बोथ ए एंड बी। एक क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग रिलेटेड मैटर में और एक साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये दोनों मैटर में एनसीपीसीआर का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था इंटरपोल के साथ इन 2023 में। ऐसे इसको कैसे रोका जाए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड इज पार्टनर्ड विथ एनसीपीसीआर 2। जो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड है, वो उसका एक पार्टनर एनसीपीसीआर है। आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, फंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड आर्टिस्ट, बोथ ए एंड बी, प्रमोट इंडियन चाइल्ड सेलिब्रिटीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड पार्टनर, उसका पार्टनर एनसीपीसीआर भी है। तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, उसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज ग्रुप्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 76, वन चाइल्ड वन ट्री कैंपेन फेस्ड क्रिटिसिज्म। ये जो कैंपेन आया था, वन चाइल्ड वन ट्री कैंपेन, बहुत तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों? डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, लैक ऑफ इकोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट, बोथ ए एंड बी, यूजिंग चाइल्ड लेबर फॉर प्लांटेशन। तो उसमें ये था, मेन था लैक ऑफ इकोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये जो वन चाइल्ड वन ट्री कैंपेन को क्रिटिसाइज किया गया था इसी मैटर के ऊपर, लैक ऑफ इकोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question 77, as per NCPCR's 2024 report, what percentage of POCSO cases face delays due to forensic backlogs? फोरेंसिक रिपोर्ट इट मीन्स अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो कितना परसेंटेज पोक्सो केसेस, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, अभी भी डिले यानी पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि उसका फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो एनसीपीसीआर ने रिपोर्ट दिया था 2024 में अराउंड 68%। 68% पोक्सो केसेस अभी पेंडिंग है 2024 जो एनसीपीसीआर का रिपोर्ट है, क्योंकि उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 78, एनसीपीसीआर आइडेंटिफाइड %% of shelter homes as non-compliant with Juvenile Justice Act in 2023 audits। एनसीपीसीआर ने 2023 में ऑडिट किया था, उसमें जो शेल्टर होम्स है उसको भी नॉर्म्स टर्म्स इट मींस कंडीशंस नॉर्म्स को फॉलो स्ट्रिक्टली करना है। जो जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो 2015 का इट मींस गाइडलाइन के हिसाब से शेल्टर होम्स को वो गाइडलाइंस को कंप्लाई करना है, मगर कितना परसेंटेज उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं? तो अराउंड 63%। ये एनसीपीसीआर का डाटा है। अराउंड 63% शेल्टर होम्स दे डिड नॉट कंप्लाई द गाइडलाइंस ऑफ जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को, ठीक है। ये 2023 ऑडिट हुआ था, एनसीपीसीआर ने डिटेक्ट किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 79, एनसीपीसीआर's यूज ऑफ प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग algorithms relies on। ये जो प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग algorithms relies on क्राइम हीट मैप्स, स्कूल ड्रॉप आउट डाटा, बोथ ए एंड बी, आधार डेमोग्राफिक डाटा। ये जो एल्गोरिथम को डेवलप किया है एनसीपीसीआर ने, क्यों किया है? तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ये क्राइम हीट मैप्स और स्कूल ड्रॉप आउट डाटा, ये दोनों डाटा को
एल्गोरिदम के माध्यम से कलेक्ट किया जाएगा, तो इसलिए प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग को यूज किया गया है, एनसीपीसीआर ने यूज किया है। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, द ई सक्षम पोर्टल integrates all SPCR complaint tracking, child welfare committee reports, both A and B, only NCPCR decisions। जो ई सक्षम पोर्टल है ये ऑल स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट कंप्लेंट ट्रैकिंग इसको ट्रैक करता है। जितना स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी रिपोर्ट, ये दोनों को क्या है, ये दोनों का एक एससीपीसीआर कंप्लेंट ट्रैकिंग और एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी रिपोर्ट। ओके, तो ई सक्षम पोर्टल ये दोनों को हैंडल करता है, ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी कंप्लेंट है स्टेट कमीशन का फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के ऊपर, उसको ट्रैक करता है ई सक्षम पोर्टल, और के जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी का रिपोर्ट को भी उसको सही तरीके से ट्रैकिंग करता है और पेरियूज करता है, ठीक है। तो ई सक्षम पोर्टल इसलिए है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, अनलाइक एनएचआरसी, एनसीपीसीआर कैन कंडक्ट सरप्राइज रेड्स, इश्यू बाइंडिंग ऑर्डर्स, बोथ ए एंड बी, रिकमेंड पॉलिसी चेंजेस। तो एनसीपीसीआर कैन कंडक्ट सरप्राइज रेड्स। एनएचआर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सरप्राइज रेड नहीं करेगा, मगर एनसीपीसीआर सरप्राइज रेड कर सकता है। जब उसको डिटेक्ट होता है, सस्पेक्ट होता है कोई चाइल्ड राइट वायोलेशन है, वो सरप्राइज रेड कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, द नो चाइल्ड लेफ्ट ऑफलाइन इनिशिएटिव एड्रेसेस व्हाट। ये जो इनिशिएटिव है नो चाइल्ड लेफ्ट ऑफलाइन, डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन, साइबर बुलिंग प्रिवेंशन, बोथ ए एंड बी, और बैनिंग स्मार्टफोन्स इन स्कूल्स। ये जो नो चाइल्ड लेफ्ट ऑफलाइन इनिशिएटिव एड्रेसेस डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, एनसीपीसीआर विजन 2047 क्या है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का विजन 2047 क्या है। यूनिवर्सल चाइल्ड आईडी सिस्टम, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन गिग इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी, ओनली पोक्सो कन्विक्शन रेट इंप्रूवमेंट, बोथ ए एंड बी। यूनिवर्सल चाइल्ड आईडी सिस्टम होगा, और सेकेंड वन जो गिग इकोनॉमी क्या है, बेसिकली आप देखा होगा जो चाइल्ड बेसिकली गिग इकोनॉमी में लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। शॉर्ट पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा और फिर जॉब चला जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ज्यादातर, ये ज्यादातर अभी अक्रॉस जो ग्लोबल इकोनॉमी में यही है। लेबर मार्केट से लेबर आ जाते हैं, काम करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए और उनको निकाल दिया जाता है। तो ये जो चाइल्ड लेबर बहुत है गिग इकोनॉमी में, शॉर्ट पीरियड के लिए चाइल्ड को इन्वॉल्व कर दिया जाता है काम में और उनको निकाल दिया जाता है। तो उसको कैसे एलिमिनेशन किया जाएगा, चाइल्ड लेबर इन गिग इकोनॉमी में बारे में बताया जनरली कि इस इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना, लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है मगर शॉर्ट पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल एक एग्रीमेंट होता है और उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और वैसा चाइल्ड लेबर को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द चाइल्ड इज एंगेज इन सम वर्क एंड देन अगेन एक्चुअली दे लूज द जॉब। तो ये सब है, इसको पूरा बंद करना है। और एक यूनिवर्सल चाइल्ड आईडी सिस्टम होगा, ये दोनों है विजन 2047, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, एनसीपीसीआर ग्रीन प्रोटोकॉल फॉर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस मैंडेट्स एवरी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में ग्रीन प्रोटोकॉल है एनसीपीसीआर का। उसका मेन जो मैंडेट है प्लास्टिक फ्री कैंपसेस। कैंपस जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उसमें प्लास्टिक फ्री होना चाहिए, इसके लिए ग्रीन प्रोटोकॉल एनसीपीसीआर ने इशू किया है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, द चेयरपर्सन ऑफ एनसीपीसीआर मस्ट हैव एटलीस्ट 20 years experience in child welfare, been a Supreme Court judge, expertise in education, child psychology or juvenile justice, prior experience as SCPCR chairperson। ऑप्शन सी, एजुकेशन में एक्सपर्ट होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर नॉलेज होना चाहिए और जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए, तो तब चेयरपर्सन का जो एलिजिबिलिटी है ये फुलफिल करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, एनसीपीसीआर रीजनल ऑफिसेस आर लोकेटेड इन। एनसीपीसीआर का रीजनल ऑफिसेस कहां पर है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी, चंडीगढ़, हैदराबाद, बोथ ए एंड बी,
ओनली इन दिल्ली। नहीं, हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, मगर उसका जो रीजनल ऑफिस गुवाहाटी में है, चंडीगढ़ में है, हैदराबाद में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 87, द टाइम लिमिट फॉर एनसीपीसीआर टू रिजॉल्व कंप्लेंट। यदि कोई कंप्लेंट एनसीपीसीआर को जाता है, क्या कोई टाइम लिमिट है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए? तो जो भी कंप्लेंट रिसीव करता है एनसीपीसीआर, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, नो फिक्स टाइमलाइन। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, एनसीपीसीआर रिकमेंडेशंस टू स्टेट्स मस्ट बी इंप्लीमेंटेड विद इन। यदि एनसीपीसीआर कुछ रिकमेंड किया स्टेट्स को, तो उसको कितने दिन के अंदर इंप्लीमेंट होगा? जिस डेट में एक्चुअली स्टेट ने रिसीव करेगा वो रिकमेंडेशन को, तो कितना दिन के अंदर वो उसको इंप्लीमेंट करेगा? तो ये है, कोई ऐसा मैंडेटरी टाइम फ्रेम नहीं है। वो रिकमेंड करेगा और स्टेट को कोई ऐसा टाइम स्टिपुलेट टाइम नहीं है कि उसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट वो रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेगा। नो मैंडेटरी टाइम फ्रेम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, NCPCR's one-stop centers for child victims, one-stop centers for child victims are established in collaboration with state women commissions, district legal services authorities, both A and B, only with NGOs. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो वन सेंटर्स फॉर चाइल्ड विक्टिम्स आर एस्टेब्लिश्ड इन स्टेट वुमेन कमीशंस, कोलाबोरेशन किसके साथ किया है एनसीपीसीआर? स्टेट वुमेन कमीशंस और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, एक आ गया द डार्क वेब मॉनिटरिंग सेल वाज क्रिएटेड टू कम्बाट। ये जो डार्क वेब मॉनिटरिंग सेल है वो ये क्या कंट्रोल करेगा, क्या रेगुलेट करेगा? ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क्स, बोथ ए एंड बी, साइबर बुलिंग इन स्कूल्स। तो ये जो डार्क वेब मॉनिटरिंग सेल है, बोथ ए एंड बी। एक है अभी ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, बहुत कुछ गेमिंग ऐप आया है, और ये जो गेमिंग ऐप जो चाइल्ड यूज करता है उसमें क्या है, मेनली वर्चुअल ग्रूमिंग है। वर्चुअल ग्रूमिंग मीन्स वो अडल्ट्स ने क्या करते हैं, इमोशनल चिल्ड्रन को के साथ कनेक्ट करके उनको अब्यूज एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, और एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क्स। ओके, इसको कंबाट करने के लिए डार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डार्क वेब मॉनिटरिंग सेल क्रिएट किया गया है। ओनली जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक नेटवर्क्स है उसको कंबाट करना है, और बाकी जो चिल्ड्रन बेसिकली जो ऑनलाइन ऐप्स आया है और वो चाइल्ड उसी ऑनलाइन ऐप से एक्सप्लॉइट होता है, मॉलेस्ट होता है, अब्यूज होता है, तो दोनों को कंबाट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए डार्क वेब मॉनिटरिंग सेल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, as per 2023 एनसीपीसीआर रिपोर्ट, द हाईएस्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस, कहां पर हाईएस्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस है? पोक्सो एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, आरटी एक्ट, जेजे एक्ट। जेजे एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। मेन पोक्सो एक्ट में अभी हम देखा था, जो 2024 रिपोर्ट आया था कि उसमें 68% बेसिकली पोक्सो केसेस पेंडिंग ड्यू टू फोरेंसिक इट मींस लैगिंग, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट अभी जमा नहीं हुआ है। तो इसके वजह से क्या है, एनसीपीसीआर जो रिपोर्ट दिया है 60% पोक्सो केसेस पेंडिंग ड्यू टू इट मींस फोरेंसिक रिपोर्ट पेंडिंग। ठीक है, तो पोक्सो एक्ट ज्यादा रिलेटेड टू पोक्सो एक्ट केसेस एक्चुअली ज्यादातर पेंडिंग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 92, एक एनसीपीसीआर का डाटा दर्पण पोर्टल कंसोलिडेट्स व्हाट। ये जो डाटा दर्पण पोर्टल है वो क्या कंसोलिडेट करता है? एनसीपीसीआर का ये पोर्टल है चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्टैटिस्टिक्स, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट्स, बोथ ए एंड बी, ओनली अडॉप्शन डाटा। बोथ ए एंड बी। एक है चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्टैटिस्टिक्स कंपाइल करता है, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट्स, ये दोनों ये जो पोर्टल है कंसोलिडेट करता है दोनों को। ठीक है, चाइल्ड दर्पण पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 93, अनलाइक एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनसीपीसीआर हैज डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन पावर्स, मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, बोथ ए एंड बी, नो मेजर डिफरेंसेस। देखिए, एनसीपीसीआर में मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एक चेयरपर्सन है और 6 मेंबर्स है। ये जो 6 मेंबर्स में एटलीस्ट 2 फीमेल मेंबर्स, एटलीस्ट 2 फीमेल मेंबर्स, याद रखिए। ठीक है, तो मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन वुमेन का है। राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 94, मेटावर्स गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन एड्रेस। ये जो मेटावर्स गाइडलाइन आया है
तो क्या एड्रेस कर रहा है? वर्चुअल ग्रूमिंग रिस्क, इनफ परचेजेस बाय माइनर्स, बोथ ए एंड बी, ओनली अवतार सेफ्टी। तो वर्चुअल ग्रूमिंग रिस्क जो मेटावर्स गाइडलाइन जो आया है वो मेनली एड्रेस कर रहा है वर्चुअल ग्रूमिंग। अभी मैं बताया था वर्चुअल ग्रूमिंग बहुत कुछ आप है, ऑनलाइन गेमिंग आप है, ऑनलाइन बहुत कुछ सोशल मीडिया में आप है, जिसमें बच्चों चिल्ड्रेन एक्चुअली दे आर यूजिंग दीज ऑनलाइन एप्स, और बेसिकली अडल्ट्स they emotionally connect with the children, and they abuse them, they molest them, they exploit them। ठीक है, तो ये सब को बेसिकली एड्रेस करने के लिए ये मेटावर्स गाइडलाइंस आया है। ठीक है, तो वर्चुअल ग्रूमिंग रिस्क है ये ऑप्शन ए। जब ऑनलाइन के माध्यम से अडल्ट्स ने क्या करेगा ना, चाइल्ड को अब्यूज करेगा थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ, जब चाइल्ड वो आपको यूज करेगा उसमें उसके साथ कनेक्ट करके उसको अब्यूज करेगा, ठीक है, मोलेस्ट करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 95, एनसीपीसीआर बजट इज अलोकेटेड थ्रू, एनसीपीसीआर का जो बजट है उसको कौन अलोकेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ WCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एनसीपीसीआर का बजट को अलोकेट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 96, एक आ गया, द बाल सुरक्षा कोष रिसीव्स फंड्स। जो बाल सुरक्षा कोष है वो कहां से फंड रिसीव करता है? कॉर्पोरेट CSR, ट्रैफिकिंग वायोलेशन फाइन्स, बोथ ए एंड बी, ओनली गवर्नमेंट ग्रांट। CSR मीन्स बेसिकली सोशल, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है कॉर्पोरेट, इसका फुल फॉर्म बता दो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो बाल सुरक्षा कोष जो है वो ये दोनों से फंड रिसीव करता है, अब बोथ होगा ए एंड बी। एक है कॉर्पोरेट सेक्टर, उनका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डोनेट करते हैं, देते हैं, फंड डोनेट करते हैं। और एक जो ट्रैफिक वायोलेशन में जो फाइन्स लिया जाता है, ट्रैफिक वायोलेशन जो फाइन लिया जाता है, दोनों एक्चुअली फंड को बाल सुरक्षा कोष में बेसिकली रिसीव करता है फंड को। ओके, तो बाल सुरक्षा कोष रिसीव्स फंड्स फ्रॉम दोनों, कॉर्पोरेट CSR, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर डोनेट करते हैं, और एक ट्रैफिक वायोलेशन फाइन्स जो है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 97, एनसीपीसीआर स्ट्रक्चर इज मॉडल्ड आफ्टर। ये जो एनसीपीसीआर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मॉडल है, इसको किसको वो फॉलो किया है? वो यूनाइटेड किंगडम्स चिल्ड्रंस कमिश्नर, यूनाइटेड किंगडम्स चिल्ड्रंस कमिश्नर को एनसीपीसीआर स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, एनसीपीसीआर डिराइव्स इट्स इन्वेस्टिगेटिव पावर्स फ्रॉम व्हिच सेक्शन ऑफ CPCR एक्ट। मैं बताया था CPCR मींस कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, उसका कौन सा सेक्शन है जहां पर उसके पास इन्वेस्टिगेटिव पावर है? वो जब उसको कंप्लेंट रिसीव होगा वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। आप देखिए CPCR एक्ट का सेक्शन 14 में क्लियरली मेंशन है कि एनसीपीसीआर को जब कंप्लेंट मिलेगा कोई चाइल्ड अब्यूज, कोई चाइल्ड वायोलेशन, ठीक है, कि कोई सेफ्टी सिक्योरिटी में वायोलेशन हुआ है चाइल्ड का, तो उस केस में वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सेक्शन 14 ये इन्फॉर्म किया है CPCR एक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, द वन बंधु कल्याण योजना फोकसेशन। ये जो योजना है वन बंधु कल्याण योजना क्या फोकस करता है? ट्राइबल चिल्ड्रन एजुकेशन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन ट्राइब्स, बोथ एंड बी, नाइदर। ये मेनली जो वन बंधु कल्याण योजना है तो बेसिकली ये फोकस करता है ट्राइबल चिल्ड्रन एजुकेशन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन ट्राइब्स, नाइदर। ये तो रिलेटेड ट्राइबल है तो बोथ ए एंड बी, ट्राइबल चिल्ड्रन एजुकेशन और प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन ट्राइब्स, ये दोनों, ठीक है, फोकस करता है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु कैन रिमूव द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ एनसीपीसीआर। ऐसा कुछ मिसकंडक्ट डिटेक्ट होता है जब जो एनसीपीसीआर का चेयरमैन की एनसीपीसीआर का कोई मेंबर को रिमूव किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट, द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट मींस यहां पर ये भी आ सकता है, इसका जो मेन मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यदि वो डिटेक्ट करता है कि चेयरमैन कोई मिसकंडक्ट किया है और उसका इंक्वायरी में प्रूव होता है कि कोई मेंबर एक्चुअली वो मिसकंडक्ट किया है और इंक्वायरी में प्रूव होता है, वो उसी ग्राउंड में उनको रिमूव कर सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ये 100 क्वेश्चन डिस्कस किया। अभी थोड़ा हम कंपोजिशन देख लेंगे। एनसीपीसीआर का जो चेयरमैन मेंबर्स, उनका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टर्म्स ऑफ ऑफिस है, डिटेल्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन देखेंगे। आप देखिए सीपीसीआर एक्ट जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 है, उसका सेक्शन 3 में, क्योंकि एनसीपीसीआर जो बना ना, तो बेसिकली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के हिसाब से हुआ, तो उसका सेक्शन 3 में दिया है एक चेयरपर्सन होगा और मेंबर 6 होंगे। मेंबर 6 में मिनिमम 2 वोमेन मेंबर्स मैंडेटरी, एटलीस्ट 2 वोमेन मेंबर्स, और एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन एक होगा। ठीक है, तो इट मीन 7 टोटल, 1 + 6, 1 चेयरमैन 6 मेंबर्स, और मेंबर्स में एटलीस्ट 2 वोमेन फीमेल मेंबर्स, और मैंडेटरी है एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सेक्शन 3 बोल रहा है, सेक्शन 3 को याद रखना है। सेक्शन 3 सीपीसीआर, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, ये एक्ट क्या है 2005 का। ठीक है, ये सेक्शन 3 में इंफॉर्म किया गया है। चलो क्वालिफिकेशंस देखेंगे चेयरपर्सन और मेंबर्स का। मस्ट हैव एमिनेंट एक्सपीरियंस। देखा, चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स और एजुकेशन और जुवेनाइल जस्टिस और चाइल्ड साइकोलॉजी और हेल्थ, इसके ऊपर जिस आदमी का एक्सपीरियंस है उसको चेयरपर्सन के लिए, एनसीपीसीआर का चेयरपर्सन के लिए एलिजिबल है। एजुकेशन, चाइल्ड राइट्स, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड साइकोलॉजी और हेल्थ। बाकी जो अदर मेंबर्स है ये है एटलीस्ट वन ऑफ दिस फील्ड्स, एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड चिल्ड्रन हेल्थ की चाइल्ड वेलफेयर लेजिस्लेशन, इसके ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अदर मेंबर्स जो है 6 मेंबर्स हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट, कोई मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, नो मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड, बट प्रोमिनेंस इन द फील्ड इज रिक्वायर्ड। वो फील्ड में प्रोमिनेंट होना चाहिए, मगर कोई एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाहे चेयरमैन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, यदि क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट दे देना है, नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सिलेक्शन कमिटी देखिए, हेडेड बाय WCD में मिनिस्टर, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो रहेंगे, हेड होंगे, और बाकी उनके अंडर में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एंड चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट ये रहेंगे। तो मगर हेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो मिनिस्टर है वो हेड है, उनके अंडर में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे और चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट रहेंगे, और वो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। टर्म्स एंड रिमूवल में बेसिकली टर्म्स होता है 3 इयर्स चेयरपर्सन एंड मेंबर्स का, और अंटिल एज ऑफ 65 व्हिच एवर इज अर्लियर। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, मोर देन 1 टर्म अपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, रिमूव कब किया जाएगा, जब मिसकंडक्ट, ये तीनों केस में मिसकंडक्ट, इनकैपेसिटी, कन्विक्शन इन ए क्राइम, ये तीनों केस में चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है आफ्टर इंक्वायरी, यदि प्रूव होगा। मिसकंडक्ट, इनकैपेसिटी, कन्विक्शन इन ए क्रिमिनल केस। ठीक है, क्लियर। बाकी सैलरी एंड अलाउंसेस आप देखिए, सेक्शन 6 ऑफ द सीपीसीआर एक्ट, इसमें उसको डिटरमाइन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा उनका सैलरी एंड अलाउंसेस को। ये सेक्शन 6 को याद रखना है सीपीसीआर एक्ट का। ठीक है, अभी लीगल प्रोविजंस देख लेंगे। ये जो 4 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सीपीसीआर एक्ट है ना, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, ये एक्ट के हिसाब से एक्चुअली एनसीपीसीआर को डेवलप किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। सेक्शन 3 कंपोजिशन एंड क्वालिफिकेशंस, जो चेयरमैन एंड मेंबर्स। सेक्शन 4 टर्म्स ऑफ ऑफिस, अभी बताया 3 इयर्स और 65, व्हिच वन इज अर्लियर। रिमूवल प्रोसेस से सेक्शन 5। सेक्शन 6 है सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस। ये 3 to 6 आता है। सभी मैक्सिमम आप यूपीएससी एग्जाम दीजिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। सेक्शन 3 to 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन को याद रखना है। नेक्स्ट, करेंट कंपोजिशन, अभी करेंट में प्रियंक कानूनगो वो चेयरपर्सन है, मेंबर्स 2 वुमेन मेंबर्स है, 1 SC/ST रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी एक्सपर्ट्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर है। ठीक है, तो आज इतना ही था। 100 मैराथन एमसीक्यूज था, कुछ मैं एक्सप्लेन किया, अच्छा चीज को मैं कलेक्ट करके दिया। तो एनसीपीसीआर जो है इसके ऊपर बेसिकली टीचर्स टेस्ट होता है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी नेट, आप जैसे केवी, नवोदय और आपका EMRS, आपका दिल्ली बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड में कोई भी आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड टीचर्स पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, एनसीपीसीआर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है।
तो प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल so that you can get notification. Please don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you and namaskar to all of you.